Hi, uh, I'm Dr. Pragya Sharma. I'm an assistant professor at the Department of Clinical Psychology at RMN Hospital. I hope all of you are able to see me and hear me. If you can write a comment so that I'll know for sure. Okay, thank you for letting me know. So I'm thankful for National Medicals Organization to have me here today. And when they asked me to talk about something related to mental health awareness, I figured that why don't we talk about something that's so much more important? As a mental health professional, I've been working with a lot of people during this pandemic times. But what I realized was that somehow a lot of us are missing out on a very vulnerable population at this point of time, which is our frontline healthcare responders, which are the doctors, the nurses, all the healthcare professionals that are, working day and night towards ensuring that we are able to get past this pandemic that has come up. So, although our hospital is doing some work, but we have only been able to create a helpline for our own doctors and nurses and health professionals. But when I look at health professionals across the country, I realize that we have such a less population of mental health care professionals that we are not able to cater to every doctor and nurse out there who needs our support at this point of time. I've also been part of some of the work which is looking after the suspected patients quarantined at different centers here in Delhi. And I've worked with the healthcare team. So, I sat down with them and I've looked at them, and I know that some of the problems that they have been facing and the numerous stresses they were going through, and which in the long run would actually affect their own mental health. So I think this is really important thing I need to address. So let me start by talking about some of the stressors that I think all of you are facing. So these range from workplace stressors. Of course, the first being that there's a risk of contracted COVID-19 from patients or co-workers yourself. And of course, there's an inadequate or unhygienic PPE, which might not be available at times. And there's an insufficient staff, which is actually leading to a burden on the people who are actually there at duty, because they're not getting enough rest, they're not getting enough leaves, they're constantly working 24 hours a day, and sometimes even going into double shifts. Then again, some inadequate, unavailable number of ventilators and ICU beds. अभिषेक जी, मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बीच बीच में बात करती रहूँ. तो जो हमारे पास वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड्स की कमी है, वो एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है. और क्लीनिंग या डिसइंफेक्टेंट सप्लाईज इतनी एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं हैं, या ड्रग्स या टेस्टिंग सप्लाईज खासकर जो बिल्कुल ही कीमत मात्रा में हैं. तो उससे ये हो रहा है कि जो एक family members हैं पेशेंट्स के, या पेशेंट्स themselves, they are also getting violent towards doctors. So that's another stressor जो हम लोग as healthcare professionals face कर रहे हैं, कि चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, हम जनता को नहीं दे पा रहे हैं, उनका गुस्सा, उनका रोष एक अलग हमारे ऊपर जाहिर हो रहा है. Then, of course, a lot of logistics, जैसे wearing these PPEs and masks, it's very uncomfortable. सांस नहीं आती है, या आप यूरिनेट करने नहीं जा सकते हैं, या पानी नहीं पी सकते हैं, या खा नहीं सकते हैं. ये सारी जो लॉजिस्टिक्स चीज़ें आप लोग जो फेस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर. एंड ऑफ कोर्स द कम्यूटिंग इश्यूज, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, तो आप कैसे अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं. अगर कुछ हॉस्पिटल्स ने बसेस भी चालू करी हैं, तो वो काफ़ी सुबह निकल रही हैं या काफ़ी देर से वापस आ रही हैं, जिसकी वजह से रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है, या खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज आने जाने में भी इतना समय लग जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो सारे लॉजिस्टिक्स इशू हो गए, या चीज़ों को लेकर बात हो गई जो आपके पास कमी है, जो मुहैया नहीं करवा पा रही है सरकार.
पर उसके अलावा जो एक एक्सट्रीम सफरिंग है पेशेंट्स की रोज रोज देखना, वो एक डेस्परेशन, इस वक्त में जब वो अपने आसपास के लोग, अपने लव्ड वंस के साथ भी नहीं हो पा रहे हैं, वो एक दर्द आप लोग रोज विटनेस कर रहे हैं। और फैमिली मेंबर्स को कैसे समझाएं, उनको क्या क्या जवाब देने हैं। देन ऑफ कोर्स कई बार होता है कि हम एक पेशेंट के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिनों तक लगे हुए हैं या हफ्तों तक लगे हुए हैं, और उसके बाद भी वो पास अवे कर जाता है। तो वो एक जो दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत करी, इतने सारे हमारे एफर्ट्स बेकार हो गए। देन ऑफ कोर्स एक कोवर्कर्स को लेकर भी चिंता रहती है कि कोवर्कर्स अगर हमारे खुद कोविड से ग्रस्त हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो वो एक और एक्स्ट्रा स्ट्रेसर एड ऑन हो जाता है। देन ऑफ कोर्स कोवर्कर से भी कई बार हम टीम्स में अलग अलग हो जाते हैं, तो जिनके साथ हमारी अच्छी रैपो थी, हमें किसी नए इंसान के साथ काम करना पड़ रहा है, तो उनके साथ रैपो बनाना, उनके साथ एक रिश्ता बनाना। और कई बार इसमें एक दूसरे से आपस में भी इरिटेबिलिटी हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स कोवर्कर से भी, पर इसके अलावा खासकर जो हमारे परिवार वाले हैं या जो हमारे नेबर्स हैं या जो सोसाइटी है, उससे एक स्टिग्मा, एक डिस्क्रिमिनेशन आता है जब उन्हें पता चलता है कि ओ ये हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, हमें इनसे दूर रहना है, इनके दरवाजे पे लिख दो या अपार्टमेंट में इन्हें आने जाना मत दो। तो वो सारी जो एक स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है वो भी फेस कर रहे हैं आप लोग। और उसके अलावा एक जो एक एमिनेंट कैटास्ट्रोफे की एक डर रहता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ खराब हो जाने वाला है, ना जाने कल क्या हो जाएगा, ना जाने कल हॉस्पिटल में जाके और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और कितने पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। तो वो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस चलता रहता है दिमाग में। देन ऑफ कोर्स एक जो अनप्रिपेयर्डनेस फील होती है कि ये जो मॉरल डिलेमास आएंगे हमारे सामने, कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट बहुत कम रहेगा और हमें उसे राशन करना पड़ेगा कि किसको हम वो मुहैया कराएं, किसको नहीं कराएं। तो वो जो एक चॉइस हमें बनानी पड़ेगी, उसको लेकर भी एक मन में डर रहता है, एक परेशानी सी रहती है कि कैसे वी विल डिसाइड कि हु गेट्स टू लिव एंड हु डजंट। एंड अनदर थिंग वुड ऑफ कोर्स बी कि अपने को भी बचाना है पर पेशेंट का भी ध्यान रखना है। तो ये जो एक डिलेमा रहता है इस खतरनाक सी बीमारी में, जिसमें पता नहीं इतनी छोटी छोटी चीजों से भी वो इन्फेक्शंस हो जाता है या कंटामिनेट हो जाता है, कि आपको एक कांस्टेंट जो एक बनाए रखना है बैलेंस टू केयर फॉर योरसेल्फ एज वेल एज केयर फॉर योर पेशेंट्स इज सो हार्ड। इट्स सच अ स्ट्रगल टू डू। देन ऑफ कोर्स एक तो आपको कांस्टेंट डिमांड्स रहते हैं आपके ऊपर, एक आवाजें, इतना शोर रहता है जहाँ पे काम करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूसली वो पीपीई पहनना पड़ रहा है, वो भी एक बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। अपॉन ऑल ऑफ दिस कई बार हमें लगता है कि गवर्नमेंट से या हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना इतना काम करने के बावजूद मिलना चाहिए। तो वो एक और थोड़ा सा हमें एंजाइटी क्रिएट कर देता है या स्ट्रेस क्रिएट कर देता है कि मतलब एटलीस्ट जो हम चाह रहे थे कि जो लोग हमारे साथ हों, हमारे बैक पे ध्यान रखें, वो दे हैव आवर बैक्स, वो चीज नहीं हो पाती है। ये तो हुए सारे वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स जो आप लोग फेस कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। बट उसके अलावा घर के बहुत सारे स्ट्रेसर्स रहते हैं। एक तो डर रहता है कि आप आफ्टर हॉस्पिटल अगर आप घर जाएंगे तो क्या आप कहीं अपने बच्चों को या अपने पार्टनर को या अपने माता पिता को कहीं कंटामिनेट तो नहीं कर देंगे, क्योंकि मे बी यू माइट बी एबल टू सर्वाइव, पर बच्चे और एल्डरली जिनमें कहा जा रहा है कि ये चीजें और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है, तो वो एक डर मन में रहता है। दूसरा, इस बीमारी के चलते कुछ हॉस्पिटल्स ने ऐसा भी कर दिया है कि आप 2 हफ्ते काम करिए, उसके बाद आप घर जाइए। तो जब आप काम कर रहे हैं तो आप किसी होटल में या हॉस्पिटल गेस्ट हाउस में या वहां आपको रहने को कह दिया गया है, जो आपका पहला डर तो हटा देता है थोड़ा बहुत कि हाँ मैं घर नहीं लेके जा रहा हूँ बीमारी या लेके जा रही हूँ। बट उससे दूसरी चीजें आती है कि एक फोर्स्ड सा सेपरेशन हो जाता है अपनों से, जहाँ पे घर जाके थोड़ा सा हम चीजों को भूल पाते थे, रिलैक्स कर पाते थे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली हम सिर्फ होटल में हैं या हॉस्पिटल में ही हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, अपनों से मिल नहीं पा रहे हैं। इतना समय हो गया बच्चों को देखे हुए, घर वालों को देखे हुए, या अगर घर जा भी पा रहे हैं तो इतना देर से जा रहे हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है कि इतना एग्जॉशन हो जाता है, इतना थकान हो जाती है कि हम उनके साथ समय नहीं बिता पाते हैं, या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ समय नहीं बिता पा रहे। एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा छूटता चला जा रहा है।
जितना समय खुद को मिलना चाहिए अपने पे ध्यान देने के लिए, खाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, या एक नॉर्मल रूटीन बिताने के लिए, वो नॉर्मल रूटीन तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, गायब हो चुका है। और जो आपकी जिम्मेदारियां रही उसमें आप उतना हाथ नहीं बटा पा रहे हैं अपने पार्टनर का, तो कुछ लोगों को हो सकता है गिल्ट भी हो रहा हो कि मैं बच्चों के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहा, या मैं अपनी पेरेंट्स की केयर नहीं कर पा रहा जो कि मैं पहले कर रहा था या कर रही थी। तो ये सारी चीजें हैं जो फ्रंट लाइनर्स को, आप लोगों को एज डॉक्टर्स, नर्सेज, एज हेल्थ केयर स्टाफ, आप इससे ग्रसित हो रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि मैंने बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों पे हाथ रखा है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस समय परेशानी पैदा कर रही हैं। बट इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो जो मैं बोलूँगी, ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम एक्यूट ट्रॉमेटिक स्ट्रेसर बोलते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये कोई मेंटल इलनेस है या इसके लिए आपको इलाज कराना है, बट मैं ये बोलूँगी ये एकदम एक्सपेक्टेड है। अभी जब आप इस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकता है, आपका ये महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। बट जब तक कि ये आपके लिए कुछ डिसरप्शन नहीं क्रिएट कर रहा है आपकी रोजमर्रा की फंक्शनिंग में, अगर आपको लग रहा है नहीं मैं बिल्कुल काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, या मैं बाकी चीजें जैसे मेरी जिंदगी में मुझे जैसा महसूस होता था वैसा नहीं हो रहा, बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, या बहुत दुखी महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो अगर जरूरत से ज्यादा ऐसा महसूस हो जाए ना, तो फिर वो एक बीमारी का रूप ले सकती है। बट अभी तक उसको मैं ये बोलूंगी कि एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है जो आपकी बॉडी या आपके माइंड को देना स्वाभाविक है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। इस पे हम 5 चीजों की बात कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। एक तो हम जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। तो ट्रॉमा में एक तो ये विक्टिम जैसी फीलिंग आती है कि जैसे बाकी लोग घर पे बैठे हैं, वो लॉकडाउन में परेशान हो रहे हैं, पर आपको लॉकडाउन में भी वो नसीब नहीं है कि आप घर पे बैठ के आराम कर सकें, आप अपने बच्चों या बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, क्योंकि आपको वो फ्रंट लाइन पे रहना है, आपको बाकी लोगों का ध्यान रखना है, आपको सबका सोचना है। तो वो एक जो विक्टिमाइजेशन वाली फीलिंग आती है, या फीलिंग आती है कि जो एक आसपास वाले लोगों से या घर वालों से सपोर्ट मिल रहा था उसका इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि वो सपोर्ट आपको मिल जाए, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सा ट्रॉमा सा एस्टैब्लिश होने लगता है। दूसरी जो चीज है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बेरीवमेंट, जिसमें होता है कि एक सेपरेशन, एक लॉस का अनुभव होता है कि अपने लव्ड वन से हम थोड़ा दूर हो गए। एक फेमिलर वे ऑफ जो हमारा लाइफ था कि रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी, या फ्यूचर को लेके जो चीजें हमने सोची थी, ड्रीम्स, गोल्स, वो चीजें थोड़ी सी तहस नहस होती नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, वो चीजें वैसे नहीं चल रही जैसा हम प्लान कर रहे थे या सोच रहे थे, तो वो एक बेरीवमेंट की फीलिंग होती है। देन ऑफ कोर्स एक इंटरनल एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट से चलते हैं। जैसे अगर हम काम की बात करें तो हाँ, एक तो सेफ्टी कंसर्न्स रहते हैं, दूसरा एक डर ये रहता है कि क्या होगा अगर हम फेल हो गए, क्या होगा अगर हम इस पेशेंट को नहीं बचा पाए, क्या होगा अगर हम जो हमने इतनी पढ़ाई करी है, इतना कुछ किया है, उसका अगर हम आज फायदा नहीं दिखा पाए तो क्या होगा। वो सारी चीजें आती हैं। हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है कि कितना सारा भी हम कोशिश कर लें, जो भी हम कर लें वो भी कम पड़ रहा है, हम सबको नहीं बचा पा रहे हैं, हम सबके लिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। एक लॉस की फीलिंग होती है, एक अकेले होने की फीलिंग होती है, आइसोलेशन की। ऐसा लगता है कि जितना सपोर्ट हम चाहते हैं उतना हमें नहीं मुहैया हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है। या पर्सनल लाइफ में परिवारजन को लेकर सेफ्टी की कंसर्न्स हैं, या उनसे दूर होना, या एक आइसोलेशन या लॉस का अनुभव करना भी कुछ इंटरनल एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हमारे अंदर। चौथी चीज जो मैं बोलूंगी वो है एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, जो आजकल हो सबको रही है, पर आप लोगों को भी होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उस फील्ड में हैं, आप वहां से डिसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं, वहां से ज्यादा देर निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आप 12 घंटा या 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो वो एक दिन में तनाव सा बढ़ता चला जाता है, स्ट्रेस सा बढ़ता चला जाता है। पांचवी चीज मैं बोलूंगी कि जहाँ पे मैं हेल्पलेसनेस की बात कर रही हूँ, एक आइसोलेशन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमें उदासी महसूस होने लग जाए, हमें लगने लग जाए कि ये सब बेकार है, या हमें नींद नहीं आ रही है, या भूख नहीं लग रही है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब के लिए तो हम प्रिपेयर नहीं थे, ये सब के लिए तो डॉक्टरी ने हमें नहीं बताया कि ऐसा भी होगा, तब हम कैसे मैनेज करेंगे। और 1-2 दिन की बात नहीं है, 24 घंटा ड्यूटी आप लोग हमेशा करते आए, बट एक ऐसी ड्यूटी जो चलती चली जाए जिसका कोई अंत ही नहीं नजर आए, तो वहाँ एक होपलेसनेस सी महसूस होती है कि कब ये सब खत्म होगा, कब हम एक नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं, कब हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है मेरे अनुभव में, मेरी अंदाजे से आप लोग महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं, बट शायद मैं सारी चीजों पे टचअप नहीं कर पाऊँ।
कुछ चीज़ें मैं उठाना चाह रही हूँ, जैसे एक तो हम कहते हैं थ्रेट। मतलब आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हर दूसरा इंसान ऐसा ही है कि या अगर मैं बीमार हो गया या हो गई तो फिर मैंने अपनी ड्यूटी नहीं करी और मैं अपने कोवर्कर्स को लेट डाउन कर रहा हूँ। तो जब आप ये कहते हैं या आप ये सोचते हैं, तो मैं सुन रही हूँ कि उसमें कितना दुख है या उसमें कितना एक परेशानी है या एक एंजाइटी है। बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो लिसनिंग टू जो करेज है आपके अंदर, जो आप इतनी परेशानियों के बावजूद ये सब कर रहे हैं। आप रोज हॉस्पिटल जा रहे हैं, रोज डिस्पेंसरी जा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, भले ही आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। मैं सुन सकती हूँ उस कंपैशन को जो आप महसूस कर रहे हैं दूसरों के प्रति, कि अपने घर वालों के बारे में भी सोचते हुए भी आप फिर भी सबके लिए लड़ रहे हैं, सबकी ध्यान रखने का कोशिश कर रहे हैं। देन आई कैन ऑल्सो हियर टू दैट फीलिंग ऑफ एल्ट्रुइज्म, या जो आपकी स्किल्स हैं, जिस जो आपको इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बना दे रही हैं अभी हमारे देश का। जो एक कॉशन आप हमेशा लेकर चल रहे हैं, एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन जो आप शो कर रहे हैं सबके प्रति, और एक ऑनेस्टी से जो आप काम करते चले जा रहे हैं। तो जब मैं ये सुनती हूँ, मुझे ये सारी चीजें भी सुनाई देती हैं। तो जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। जब आप उस थ्रेट के बारे में सोचते हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रीफ्रेम योर थॉट्स एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग एल्स दैट यू आर. So you are much more than someone who's fragile and helpless. You're also someone who's so determined and dedicated, and someone who has this courage and compassion and skill to help everyone else at this point of time. दूसरी जो चीज़ मैं बात करना चाह रही हूँ वो है इंटरनल एक्सपीरियंस और इमोशन को लेकर, कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपने काम करने से नहीं डर रही हूँ, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं रिलैक्स नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारे पास पीपीई नहीं होंगे, जब हमारे बेड्स और वेंटिलेटर्स फुल हो जाएंगे, और फिर हम किसी को बचा नहीं पाएंगे। So even though when you say this, I can hear helplessness, I can hear desperation, but at the same time मुझे आपकी alertness भी सुनाई दे रही है, मुझे आपकी awareness भी सुनाई दे रही है कि you are aware of what will actually happen. थोड़े टाइम बाद आप alert हो उस possibility को लेके, and because you are focused and proactive, तो हो सकता है कि आपके आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उसे मुहैया कर पाएंगे, आप उसे इकट्ठा कर पाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन एंड करेज जो आप में है, या प्रोटेक्टिवनेस की एक जो स्ट्रीक है जो आप सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई कैन हियर. तो व्हेन यू थिंक ऑफ दिस इंटरनल एंड एक्सपीरियंस एंड इमोशन वेयर यू फील हेल्पलेस, जहाँ आपको लगता है कि कैसे मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, देन आई ऑल्सो वांट यू टू फोकस ऑन कि आपके अंदर वो जो स्ट्रेंथ है जिसको लेकर आप इतने अलर्ट हैं, इतना अवेयर हैं, इतने डिटर्मिन्ड होके ये सारी चीजें सोच रहे हैं, तो इसमें एक डेडिकेशन और करेज भी है, एंड दीज आर योर स्ट्रेंथ्स दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन. तीसरी चीज जो मैं बात करना चाह रही हूँ, वहां पे हम कोपिंग की बात कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मैं तो कभी नहीं रुक रहा हूँ या रुक रही हूँ, मैं हमेशा सबके लिए केयर कर रही हूँ, अपने टीम मेंबर्स का भी ध्यान रख रही हूँ या रख रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ या ले रही हूँ, या बहुत ज्यादा वो मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब मैं एकदम परेशान हो जाऊं या जब मैं टूटने लग जाती हूँ, तो भी मैं दूसरों को नहीं दिखाती कि मेरा अंतर मन में क्या चल रहा है, मेरी स्थिति क्या है, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू फील दैट आई एम वीक, या आई डोंट वांट देम टू वरी अबाउट मी. तो जब आप ये कोपिंग वाली चीजों को लेकर बात करते हैं, तो मुझे सुनाई दे रही है आपकी डेडिकेशन, आपका इमर्शन, आपका इंटीग्रिटी, आपकी एक खुद को लेकर अवेयरनेस, कि आप इतनी सारी चीजों के बावजूद उन्हें ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो, तो मैं उन्हें दिखाऊं ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है. तो भले ही वो बहुत सादा एक स्ट्रेंथ की जरूरत है, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट दैट इज द स्ट्रेंथ दैट यू कैरी विद इन योरसेल्फ, दैट इज द पर्सन यू आर, दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग गोइंग अराउंड यू, इतनी सारी चीजें, इतने सारे स्ट्रेसेस आपके आसपास चल रहे हैं, but you are carrying on with the strength that is there within you. So what I really want,
आई अंडरस्टैंड कि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बट चूंकि दिस इज अ कॉमन सेशन, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू जनरलाइज सम ऑफ द थिंग्स जो आपके रोजमर्रा में अभी फिलहाल में चल रही हैं. बट मैं ये चाह रही हूँ कि आपके साथ जो हो रहा है उसको हम आपस में मिलके या आप लोग आपस में सोच के थोड़ा सा उसका सेंस बिल्डिंग करें कि क्या चल रहा है, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और कैसे हम ये जानें कि हमारी जो पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं उसको यूज करके हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं. तो हमारी जो एक कोर वैल्यूज है मे बी, जिसकी वजह से हम इस स्ट्रीम में आए थे जहाँ पे हम लोगों की मदद करना चाहते थे या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते थे, तो वो सारी चीजें आपके जहन में हैं. बट मैं ये चाह रही हूँ कि हम उन्हीं स्ट्रेंथ्स को यूज करें आपकी मेंटल हेल्थ को भी बोल्स्टर करने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रेंथ देने के लिए. कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगी कि जब आपको समय मिले तो आप याद करें, मे बी इफ यू कैन नोट दीज डाउन. सो ए ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, पिछले 2-3 महीने से, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट सम ऑफ द मोमेंट्स दैट वर इंस्पायरिंग फॉर यू. कोई चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक्य हुआ जो आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग या मोटिवेटिंग रहा हो. दूसरा, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट समथिंग जो किसी और ने किया या कहा जिसने कुछ डिफरेंस लाया. कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा मैंने एक दो डॉक्टर्स ने सुना, उसमें ये था कि वन डॉक्टर वाज लाइक कि मुझे लगता है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है फैमिली मेंबर से बात करने में, क्योंकि मुझे लगता है वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, आप बोलेंगे आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे. बट देयर वाज अ पॉइंट व्हेन दिस पर्सन, दिस फैमिली मेंबर केम अप एंड दे सेड थैंक यू विद टीयर्स इन देयर आईज एंड दे सेड कि आप भगवान हो एंड आप जितना कुछ कर रहे हो, मतलब आई कैन सी यू व्हाट यू आर डूइंग हियर. तो you know that feeling of being seen, that feeling कि आप कुछ कर रहे हैं जो दूसरे के लिए मायने रख रहा है. So I want you to think back to something someone might have said, या ऐसा कुछ किसी ने किया हो जो आपके लिए उस वक्त पे एक डिफरेंस जैसा फील हुआ. तीसरी चीज जो मैं चाह रही हूँ वो मैं ये चाह रही हूँ कि आप सोचें कि कौन सी एक चीज ऐसी हो जहाँ पे आपने कुछ डिफरेंस लाया हो. वैसे तो आप रोज ही लोगों की लाइफ में रेफरेंस ला रहे हैं, बट मे बी एक या दो कोई चीज होती है जो एकदम से आपके दिमाग में आती है जब आप इस बारे में सोचते हैं. तो आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड थिंक ऑफ दैट. देन आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ अ कोर स्ट्रेंथ जो आप में है. इतनी देर से मैं स्ट्रेंथ्स की बात कर रही हूँ, डिटर्मिनेशन की, करेज की, ये सारी स्ट्रेंथ्स आपके अंदर हो सकती हैं, बट हो सकता है कोई एक कोर स्ट्रेंथ हो जो आपको लगता है कि हाँ ये है मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ. जब मैं किसी भी मुश्किलों में, मुसीबतों में या डिफिकल्टीज को फेस कर रहा हूँ या कर रही होती हूँ, तो वो चीज मेरे सबसे काम आती है. सो दिस इज द कोर स्ट्रेंथ दैट आई हैव एंड दिस इज द कोर स्ट्रेंथ दैट आई वांट टू अपहोल्ड फॉर द फ्यूचर. तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम काम करे जा रहे हैं, बट उसका फल तो हम नहीं चाह रहे, बट मे बी कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिल रहा. बट टुडे आई वांट यू टू टेल यू, ना सिर्फ खुद से बट काफी सारे किस्सों से, काफी सारे लोगों से, काफी सारी चीजों से जो मैंने पढ़ा है, इसमें ये है कि एक्नॉलेज किया जा रहा है. आप जो महसूस कर रहे हैं उसे देखा जा रहा है, वो अननोटिस नहीं जा रहा. आपका एफर्ट is being noticed and your efforts are valued every single day, every single moment. तो भले ही वो तालियां या वो बर्तन बजाना एक बचकानी सी चीज लग रहा होगा, when you know you need more PPEs, when you need more logistics, तो वो ऊपर से कोई एरोप्लेन पेटल्स गिरा रहा है, that seems very childish maybe, but at the same time maybe this is the only way that people who are in their home can show appreciation for your efforts. So उस समय जो 5 बजे आके लोगों ने तालियां बजाई या बर्तन बजाए, that was for you because आपके efforts unnoticed नहीं जा रहे हैं. They are important. Everyone values your efforts. एक चीज मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा हम इस चीज पे फोकस करें कि किस तरह का इम्पैक्ट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे इस समय पड़ रहा है और कैसे हम उसको और मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देना चाहें कि आपको वो परेशानी का आपके लिए कारण बन जाए. राइट. इस पे मैं I'm about to end, but I want to focus on some of the things that I want all of you doctors and nurses and health professionals to focus on your own self-care. तो भले ही कुछ चीज़ें बहुत
नॉर्मल सी होंगी जो आपको पता ही है, बट मे बी आई वॉन्ट टू जस्ट एम्फसाइज ऑन दैट अ लिटिल बिट। तो एक तो मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, समय की बहुत कमी है, बट फिर भी जब भी समय मिले आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपने एपेटाइट का ध्यान रखिए। आई अंडरस्टैंड कि कॉफ़ी और चाय पी के बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हो जाते हैं, आपका दिमाग चलता है, आप काम कर पाते हैं, बट उसकी वजह से हो सकता है कि रात में सोने में प्रॉब्लम आ रही हो। सो मे बी वी फोकस मोर ऑन ड्रिंकिंग मोर वाटर रादर देन कैफिनेटेड ड्रिंक्स जब भी हमें टाइम मिले। आई अंडरस्टैंड टाइम इज ऑफ अ सेंस और आपके पास इतना टाइम नहीं हो, आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल। जब भी रेस्ट का टाइम मिले, नींद का टाइम मिले, आप सोने की कोशिश करिए, विच आई थिंक यू आर ऑलरेडी डूइंग। बट कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो सो लेंगे, अभी ये जरूरी है, अभी ये जरूरी है। बट प्लीज लिसन टू योर बॉडी, यू प्लीज डू नॉट इग्नोर योर ओन बॉडी, बिकॉज आप हैं तो फिर हम बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं, आप हैं तो आप बाकी लोगों की जान बचा पा रहे हैं, बट पहले आपका होना, आपका स्वस्थ होना उसके लिए बहुत जरूरी है। सो ऑल द प्रिकॉशंस यू आर ऑलरेडी टेकिंग, आई अंडरस्टैंड, बट मे बी थोड़ा सा हमें अपना बॉडी का भी और ध्यान रखना है। Then I want you to understand that you are doing everything that you can for everyone, but you are human at the end of the day. So हो सकता है कि हम हर चीज सही नहीं कर सकते, हर इंसान को नहीं बचा सकते, हर चीज प्रॉपरली हो नहीं पाएगी, ऐसा जरूरी है ना। तो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ओके। आप जितना कर सकते हैं आप उससे दुगुना या चौगुना भी कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। So if something happens, it's not on you. Please don't blame yourself. Please don't take that guilt home. You are doing your best, and everyone respects that and values that. जितना भी पॉसिबल हो पाए अपने फैमिली मेम्बर से या फ्रेंड से जब भी थोड़ा टाइम मिले आप वीडियो कॉल कर लीजिए या कॉल कर लीजिए। थोड़ा सा उनसे टच में रहना जरूरी है, बिकॉज वो ही आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो थोड़ा सा इस हॉस्पिटल वाली या पेशेंट्स वाली दुनिया से अलग एक दुनिया है आपकी, तो उससे भी टच में रहना हमें बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मे बी माइंडफुलनेस या मेडिटेशन आप कर पाएं। अगर एक ऐप है हेड स्पेस करके जो मैं रिकमेंड करूंगी, जरूरी नहीं है आप सब्सक्रिप्शन लें, बट बेसिक उसमें 3 to 5 मिनट्स की मेडिटेशन है। हो सकता है कि 3 मिनट आप अपनी जिंदगी में निकाल पाएं, या आप ब्रेक लेके बाहर भी आते हैं अगर अपने वार्ड से, तो मे बी वो 3 मिनट्स विल हेल्प यू यू नो गेट योर माइंड बैक टू अ फ्रेश स्टार्ट, जहाँ पे आप वापस ये चीजें स्टार्ट कर पाएं। एक चीज मे बी अगर आपको समय मिले सोने से पहले 2 मिनट निकाल के, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट यू आर थैंकफुल फॉर, दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, यू नो। मतलब हम रात को वैसे इसी को ग्रैटिट्यूड जर्नल कहा जाता है, बट शायद लिखने का समय मैं इतना आपसे उम्मीद ही नहीं कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मे बी सोने से पहले जब आप बिस्तर पे 1-2 मिनट होता है कि हमें नींद आने में लगते हैं, उन 1-2 मिनट में मे बी इफ यू कैन थिंक अबाउट some of the things that you're thankful for today, that you're grateful for. It could be your family, it could be being able to help others, it could be your degree, anything. But कुछ 2-3 चीजें आप सोचिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। एक रिस्टोरेटिव मैकेनिज्म आप अपना ढूंढिए। हर एक का अलग अलग होता है, किसी को लगता है म्यूजिक सुन लिया तो तरोताजा फील हो गया, किसी को लगता है टॉकिंग टू लव्ड वन हेल्प्स, किसी को लगता है थोड़ा सा रीडिंग कर लिया या डांसिंग कर लिया। सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज योर रिस्टोरेटिव मैकेनिज्म, क्या चीज है जो आपको अच्छा फील कराती है, एंड देन मे बी do that whenever you might get some time. It could be 5 minutes, 10 minutes, half an hour. It could be a post duty off if you are getting that. I know it's difficult time right now, but you have to find something for yourself to do for yourself. Then of course peer support groups बहुत जरूरी है। कई बार जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं वो आपके कोलीग्स ही समझ पाएंगे, आपको घर पे जाके समझाएंगे, शायद वो इतना समझ नहीं पाए। तो आपस में बात करना, कोलीग के साथ वेंट आउट करना कि हाँ ये हो गया ये हो गया, कई बार वो भी एक वेंटिंग की फीलिंग अच्छी कराता है कि हाँ मतलब हमने बात कर ली किसी से इस बारे में। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, बट मे बी बात करके वो दिल हल्का हो जाता है, एक फीलिंग आती है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि खुद को लेकर थोड़ा सा विजिलेंट रहिए। मतलब एक एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है, टाइम ऐसे हैं, स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं, तो जो फील हो रहा है वो होना लाजमी है। पर अगर आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं, जरूरत से ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है या उदासीनता लग रही है, तो प्लीज डो नॉट हेसिटेट टू रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। यहाँ पे कोई वीकनेस की बात नहीं हो रही, कोई शेम की बात नहीं हो रही, कोई कमी नहीं है, पर अभी टाइम्स ऐसे हैं और आप पे इतना बर्डन और इतना सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड हैं कि उसमें कोई भी इंसान थोड़ा सा एंजाइटी या फीलिंग लो महसूस कर सकता है। तो उसमें प्लीज डू नॉट हेसिटेट टू रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यही समय है जब हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एंड वी आर ऑल्सो देयर फॉर यू एज मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स।
So लास्ट में एक नंबर आई विल ऑल्सो राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. सो हमारा जो एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, फॉर दीज टाइम्स वी हैव स्टार्टेड अ हेल्पलाइन जो पूरे देश में किसी कोई भी उस हेल्पलाइन पे सुबह 9 से रात 9 बजे तक कॉल कर सकता है, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट. एंड कोई भी स्ट्रेस भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, कोई भी आपके इश्यूज हो सकते हैं. So वो number I'll just post in the comments. So you can call that number for any kind of mental health help that we might be able to offer you. That is all from my side. Thank you everyone for being so patient and listening so well. If you might have any comments or question, I can stay for another 5 minutes or so. अगर आप comments में लिखना चाहें कुछ, if you have anything to say या anything to ask maybe. In the meanwhile, I'll write down the helpline number. मैंने हेल्पलाइन नंबर कमेंट्स सेक्शन में डाल दिया है. इफ यू ever need that, feel that you can be helped. अभिषेक जी, आई होप कि मैं थोड़ा सा आपके सवाल के जवाब दे पाई हूँ. जब आपने बोला कि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो कैसे अपना मन शांत रखना है, थोड़े से मैंने सेल्फ केयर के पॉइंट्स बताए थे. हाँ, लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है, तनाव तो बिल्कुल बढ़ेगा, पर कोशिश वही करनी है कि जो चीज़ें हमें पसंद हैं या जो चीज़ पे हम थोड़ा सा अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सारा टाइम न्यूज़ नहीं देखते रहें, सारा टाइम वो नंबर्स नहीं गिनते रहें कि कितने लोगों को हो गया, कितने लोगों को नहीं हो गया, क्योंकि न्यूज़ भी आजकल बहुत एक स्ट्रेस का सोर्स बनती जा रही है. तो वी डोंट वांट यू टू कीप डूइंग दैट. हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिताएं या अपने काम पे ध्यान दें या कोई और चीज़ करें जिससे आपके मन को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि लॉकडाउन कब तक चलेगा इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. सो जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है उनको सोचने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है. सो वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में है. तो हम अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि उनमें कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में है, तो उस पर हम ध्यान रख सकते हैं. श्रेयाश जी, अभी आरएमएल हॉस्पिटल सिचुएशन इज डिफिकल्ट एवरीवेयर इन द कंट्री, इन एवरी हॉस्पिटल, बट I know that all the doctors and healthcare staff are doing their best. I think that's all we can do right now. Thank you so much, everyone, for being there, and I wish you all the best. You are doing an exemplary work, and I can't thank you enough for all your services and duties that you're providing in this really stressful time. So, thank you, everyone. Thank you so much.